آپ معاملہ الجھانے کی کوشش نہ کریں پھوپھو جان، ہو سکے تو میری مدد کریں، آخر اماں آپ کی بھی تو بہن ہیں۔ کیوں نہیں، تمہاری اماں نے تو گویا مجھے ایک طرح سے پالا ہے۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری والدہ فوت ہو گئی تھی، تو ابا جی نے مجھے آپا کے گھر بھیج دیا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ دیکھو زہرا، ذرا نہ ڈری، ذرا نہ کم بھی ہے اس گھر نو اپنا گھر سمجھی۔ ہائے بھائی جی، آپ کدھر سے آگے ایک دم؟ میں تو بوہے تے لگ گیا، آپ کی باتیں سن رہا تھا خوشی کے ساتھ۔ تیں کہا تھا بھائی؟ میں تو یہی ہوں تایا جان، بی اے کرنے کے بعد نوکری تلاش کر رہا ہوں۔ اور نوکری نہیں ملی تو ایم اے میں داخلہ ہو جانا سی، اور ایسے ہی ایم اے کرا جاتا ہے ہمارے گاؤں۔ ایم اے بھی ہو جائے گا جی، اس وقت تو زندگی کا سوال درپیش ہے جی۔ کیوں ایسا سوال کاتے درپیش ہو گیا تیرے اس عمر میں؟ بس تایا جان، بڑوں نے لوٹ لیا مشفق و مہربان بن کر۔ میرے پر حملے کر رہے ہیں آنکھ بچا کے ہیں؟ آنکھ بچا کے نہیں تایا جان، صاف صاف عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، اپنی پھوپھی نو کیا سب کو پڑھا رہا تھا زورن؟ ان سے بھی یہی باتیں کر رہا تھا تایا جان کہ جب بزرگ خاندان کی جڑیں کاٹنے لگ جائیں تو پھر چھوٹے کیا کریں۔ اور ایک ذرا جیسی جڑ کے ریشے جیسے ہاتھ ڈالے تھے، کیا چیخنے لگ پڑے دو ہی ماں بیٹا؟ چیخنے کی بات نہیں ہے بھائی جی، یہ اپنا حق مانگنے کی بات ہے۔ اپنا حق مانگنا بھی چیخنا ہی ہویا کرتا ہے۔ اس سے تو منع کر رہے ہیں کہ نہ چیخو نہ چیخو، میرے سر میں درد ہوندا لیکن نہیں مندے۔ بات یہ تو اپنے حق کا ہتھوڑا میری پڑپڑیاں پر چلائی جا رہے ہیں۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ سر۔ السلام علیکم آپا جی، السلام علیکم۔ ہو از دس ینگ فیلو؟ ویری ہینڈسم، ویری کیوٹ۔ یہ کون ہے سر؟ ہو از یہی تو میرا بھتیجا ہے برہان شاہ، مرے ہوئے بھائی کی نشانی، ہمارے خاندان کا نام ہے، جد پشت کی رسی ہے ہمارے جد پشت کی۔ آپ اسی رسی کو کاٹنا چاہتے ہیں سر؟ اسی رسی کو آف دی بیوٹیفل کلر اینڈ ینگ، ویری ویری ینگ، مضبوط۔ میں قد کٹنا چاہ رہے ہیں بدبختہ، میں تو ایدی محفوظی لی مری جا رہے ہیں، تے منو 28 بندیاں کے سامنے ذلیل کری جا رہے ہیں۔ وہ کہاں ہے داتا دربار کا چینا کبوتر؟ وہ باہر ہے سر، باہر، آؤٹ سائڈ سر، فرش پر پتھری پھیر رہا ہے سر، ربنگ دا پتھری آن دا چپس فلور۔ ویری گڈ ورکر سر، از اے ویری گڈ ورکر سر، ویری گڈ۔ وہ فرش پر پتھری پھیر رہے ہیں؟ کیوں انہیں فرش سے حجامت بنوانی ہے؟ نو سر، وہ بلاٹ پڑ گئے تھے نا جی فرش پر، دھبے، آئی مین ویری بگ دھبے سر، ان کو صاف کر رہا ہے سر۔ اوے حضرت، ہاں جی، اوے چھڈ کے آ جا تمام باتاں، اور ہاں دیکھ کون آیا گیا گھر میں۔ اچھا جی، تم بوتل پکڑ، بوجھنے جھا کھوکے پرتے۔ آل سر، ویری ویل سر، ویری ویل سر۔ اگر آپ میرے لیے منگوا رہے ہیں تایا جان تو تکلف نہ کیجیے۔ ہاں جی، اوے ہاں جی کی بیماری، انہیں دیکھ مورے کون آیا گیا ہے، دیکھ برہان شاہ۔ دیکھنا 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 کہیں ایک دوسرے کا سانس ہی نہ دبا دینا جفی ڈالنے میں بدبخت ہو جائے۔ اب تو ماشاءاللہ بہت جوان ہو گئے ہیں جی۔ کہتے نہیں، یہی تو میں نے فکر لگی ہوئی تھی جوانی دیکھ کے۔ آپ خیریت سے تو رہے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خدا کی مہربانی ہے بھائی۔ بی اے کر لیا جی؟ تمہاری دعاؤں سے۔ آج کل کہاں ہوتے ہیں جی؟ یہی ہوتا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ تو پھر یہاں آ جائیے جی کوٹھی میں، آپ کو باہر تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور میں کہاں جاؤں؟ آپ بھی یہی رہیں جی، ماشاءاللہ بہت سے کمرے ہیں، ایک بیڈ روم اور باتھ روم ان کو دے دیں گے۔ واہ واہ واہ، کر کیا اسٹیٹس تھا، میتے پوچھے بغیر ہی کمرے لاٹ کری جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا خون ہے جی، آپ کی اولاد ہیں، ایک ہی نسل ہے میرے آقا آپ کی۔ ہاں، یہی بات بھارتی ریڈیو کہا کرتا ہے، آج کل پاکستانی اور ہندوستانی ایک ہی نسل ہے، ایک ہی رنگ روپ کے، ایک ہی بولی بولتے ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ آہی تیری طرح تھے، وہ بھی بہانہ بنا کے پاکستان نو اپنے نام لاٹ کرانا چاہتے ہیں۔ ہندوستانی حکومت جون سی ہے، ان عرب کے اٹھ کی طرح ایک کو بہاننا چاہیے گوانڈی ملک میں کسن کا، اور پھر ادھر پر قبضہ کرنے کا۔ مشرقی پاکستان پر قبضہ کرنے کی انہوں نے اسکیم بنائی کہ وہاں تو 1 کروڑ بندہ نکل کے ہماری طرف آ گیا ہے، اس لیے ہم مشرقی پاکستان پر حملہ کرائیں گے۔ لوگوں نے کہا لڑو گے کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ؟ وہ تو کھروی ہے جی، کہنے لگے ہم ساتھ کے ملک کے ساتھ فوجی معاہدہ کر لیں گے، انہوں پر بڑے بڑے ہتھیار ہیں، وہ کر لیں گے سمندر کی ناکہ بندی، ہم کریں گے چوہاں طرف سے حملہ۔ لوگوں نے کہا اگر یہ معاملہ نیا کے واسطے چلے گا سیکورٹی کونسل میں پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے وہاں ہمارا یار ہے اسے کہیں گے جو بھی قرارداد آئے جنگ بندی کی تین انہوں ویٹو کر دیں۔ لوگوں نے کہا جنگ بندی تو انسانی زندگی نو بچان کی خاطر ہوندی ہے، اور کون سا سنگ دل ہوئے گا جو ایسی عرضی نو ویٹو کرے گا؟ کہنے لگے یہ بات ہم نے انہوں نے پہلے مکائی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ سب کچھ پہلے طے کر کے کیا گیا ہے بھائی جی؟ بہت پرانی اسکیم ہے تو پہلا 6 ستمبر سن 65 میں لاہور پر حملہ کرے بھارت نے، سمجھ کے بھائی چھوٹا جہا ملک ہے ہی نہیں، کیا لڑنا ہے، پگ پگا جائے گا۔
लेकिन जब पड़िया पंजे में पंजा तो कहने लगे लड़ाई बंद करो, हम सुलह कर दें, हम खेम कर मन्ना पाओ वापस दिलवाओ, हम नहीं लड़ते। फिर उन्हें के यारा ने स्कीम बना के दी कि इधर नहीं उधर हमला करो मशरकी पाकिस्तान पर, और जसोर की तरफ से मुड़ लगाओ, कलकत्ते के करीब है। भारतीय जनरल ने कहा हदायत है कि अगर उधर भी लाहौर वाला किस्सा है तब यारा ने कहा अब हम आपकी मदद कराएंगे खुल के, और लड़ाई का समय ऐसा देंगे कि किसी ने देखा ना हो सारे एशिया में। कहने लगे हूँ चलाऊ कौन, बोले हम ही चला देंगे, लेकिन बात अंदर ही रहे, खुफिया किसी ने कन्नो कन खबर ना होवे। लेकिन तायाजान मशरकी पाकिस्तान पर हमला करके और ढाके को फतह करके और जनरल अरोड़ा को सुलहनामे के कागजों पर दस्तखत कराने के लिए वहां भेजकर अब भारतीय हुकूमत किस मुंह से कहती है कि हम सब एक हैं और हमारी तहजीब एक है और हमारी नस्ल एक है? भारतीय हुकूमत का मतलब आप लोग का शर्म दिलाना है पाकिस्तानियों तमाम के तमाम नु कि एक नस्ल और एक तहजीब के हुंदे सुंदे वे हम भारत के किसी इलाके पर हमला क्यों नहीं कर दे, वहां के लोगों को आजाद क्यों नहीं कराते, और वहां जाके नवा टिकट सिक्का काते नहीं चलाते जैसा कि हिंदुस्तान ने चलाया जाके टाके में। मैं समझता रहा जी कि शायद वो मोहब्बत बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। मोहब्बत बढ़ान ली नहीं, आप दी गैरत बढ़ान ली ऐसी बातें करते हो कि आप भी ऐसे ही कराया करो जैसे हमने कराया। आजाद मुसलिनी ने अबिसीनिया पर हमला करके उधर पर कब्जा कराया हदायत है, तब सारी दुनिया ने लांत फटकार करी, यहाँ तक दूसरी बड़ी जंग की रखी गई थी। अच्छा, अब इतने साल गुजरने के बाद इंदिरा गांधी साहबा की हुकूमत ने वही मुसलिनी की बात दोहराई है और उससे फलसफे पर अमल करना शुरू कराया और उससे सीना जोरी से तोपा और टैंक चढ़ा के मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा कराया। जर्मनी के अखबार नवीस ने इंदिरा गांधी साहबा से इस द्रोह की वजह पूछी और उन्हें की फाशिज्म का राज मालूम करने की कोशिश करी, तो आपने फरमाया भाई मशरकी पाकिस्तान पर भारत का हमला, इसके बाद टाका की फाल और जनरल अरोड़ा सिंह का सलहनामे पर दस्तखत कराना, ये मुसोलिनी के अबिसीनिया पर हमला करने रूदे पर कब्जा करने से बहुत मुख्तलिफ है जी। हमने मशरकी पाकिस्तान को फतह करके उदे पर जिस्मानी कब्जा नहीं कराया, इक्तसादी मुआशरती जिन्हों हम आर्थिक सामाजिक कब्जा कहने ओह रखा हुआ और ऐसी बातें की बड़े मुल्कों को आजादी होनी चाहिए। हाँ बड़ा मुल्क चाहिए, यानी जी अगर पाकिस्तान भारत के किसी सूबे या हिस्से पर हमला करके उसे फतह कर ले तो ये जायज है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमला करके उदे पर कब्जा करे, वहां दिफा करने वाली भारतीय फौज नु हथकड़ियां और बेड़ियां लगा के किसी 3 कैंपों में कैद करे, फतह करे हुए इलाके नु कर्जे देवे, उदे ना का टिकट और नोट छाप के देवे, वहां की फैक्ट्रियां के पुर्जे निकाल के ले आवे घर में, खुद बाहर रहे पर अंदर उदा हुक्म चल दे, उदी स्कीम पर अमल होवे, 25 साल का दिफाई मुआहदा करे, फिर पाकिस्तान बाकी के हिंदुस्तान की तरफ रेडियो के तूतू का मुंह करके कहे हम भाई भाई हैं, हमारी नस्ल हमारी तहजीब एक है, हमने गुजरे हुए वक्त याद आते हैं जब नूरदीन और राम शरण मिलके तूतियां बजाया करते थे और कैंथा की बेरियां के वेर खाया करते थे। वैसे तायाजान ये फलसफा है बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं, मुसलिनी था बेवकूफ था, वो था फाशिस्ट था, कडाब प्लास होता, ये सियाणप तो रबड़ी बाणी नहीं देती है कि हमला करे टैंका ते बम्बार जहाजा ते और मिसाइल बरदार किश्तियां ते आपदे मुल्क पर, और जब मुल्क का आधा हिस्सा कब्जे में कर लवे तब बाद में कहे वीर जी क्या हाल है, बेबे होरी तो राजी हैं, आपदी मासी फातिमा के मोटे पर फोड़ा निकले हुआ था कि वीर होदा क्या हाल है, ताया फजलुद्दीन नु बहुत मिलने जी करता है, उन्होंने शुगर आंदी थी, उन्हें की सुख शांत सुनाओ। हमने आजाद कराए होते जी ना ये नागालैंड और तमिलनाडु और सिखस्तान, और फिर हमारे अदीब और कलाकार कहते जी रेडियो पर कि अब भी कनॉट प्लेस की शामें याद आती हैं और गोमती के किनारे शेर गोई की महफिलें याद आती हैं और भाई कृष्ण महाराज और लाला उपिंदर नाथ और महाशा राजेंद्र देव को देखने को जी चाहता है। तो फिर उन्हें पता चलता है जी कि जलती पर तेल गिराना किसको कहते हैं। हाँ, परसों ही एक भारतीय अदीब कह रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कि मैनू अपने लाहौर के भाई याद आते हैं, सूत्र मंडी याद आती है जहां हम ढाबे पर ते भटूरे खाया करते थे, क्या अच्छा जमाना था, क्या भाई भाई थे हम। अब हमारी सरकार ने मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा करन थे और 1 लाख पाकिस्तानी फौजियां और दूसरे शहरों ने जंगी कैदी बनान थे, हालात क्या बदल गए।
लोका में मेहर वफाई नहीं रही, पाकिस्तानियों में मोहब्बत ही नहीं रही। हम पाकिस्तानियों तो वैसी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी भाई हम तो मोहब्बत नहीं करते, खुदा खबर क्या हो गया। उन्होंने कहते भी बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पर हमेशा ही कब्जा करते आए हैं पाकिस्तानियों, और हमेशा ही कब्जा करते रहेंगे, लेकिन ये मोहब्बत में कमी तो नहीं आनी चाहिए, दिला में कदूरता नहीं आनी चाहिए, और बदला लेने की स्पिरिट नहीं पैदा होनी चाहिए। टाके में क्या हो गया, कुछ भी नहीं। भारतीय सरकार ने अपने जनरलों ने हुक्म दिया कि अगर चारों तरफ से हमला करके भी मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा नहीं हो सकता तो हेलीकॉप्टर से फौज उतार दो। हेलीकॉप्टर खास इस कमली हम हमारे यार मुल्क ने बना के दिते हुए हैं पहला थे, और ये मशवरा भी भेजिया कि फौरन छाता बरदार फौज उतार दिया अंदर। हमने फौजें अंदर उतार दी हैं और रेडियो पर ऐलान कर दिया कि हथियार डाल दो, आपके साथ जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक सलूक होएगा। उन्होंने बात मान ली। हमारी भारतीय सरकार ने सुलहनामा का कागज टैप करके रोड़ा सिंह ने क्या दस्तखत करा लिया, इधर पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तानी झंडा उतार के हमने भारत का तिरंगा लहरा दिया मशरकी पाकिस्तान के दिल टाके में। फौजियों ने जंगी कैदी बना लिया, हथियार और जंगी समियान पर हमने कब्जा कर लिया। फतह करे हुए इलाके नू एक नवे मुल्क का नाम दे दिया, अपनी फौज बहा दी अंदर चिटागांग की पहाड़ियां में। पाकिस्तान के वजूद में हमने दो टोटे कर दिया, वहां पर कुरान का पढ़ना और मजहबी रस्म अदा करनी हुक्म बंद करा देती हैं। तो लोड़ा क्या आ गया, भारतीय दीप कहते गजब क्या हो गया, और मुसीबत क्या पड़ गई। हमने ये बतलाओ कि लाहौर की सूत्र मंडी का क्या हाल है, और सर्कुलर रोड पर वो मोची दरवाजे से बाहर जाओ से संगला वेल्डिंग से टांके लग गया करते थे, उन्हें मिस्त्रिया का क्या हाल है। अकबरी दरवाजे के पसारी तो अच्छे हैं, उन्होंने देखने तो बहुत दिल तड़पता है, अखा में आंसू आ जाते हैं जब फारसी के मास्टर इल्मुद्दीन साहब की याद आती है। अब मशरकी पाकिस्तान में भूल जाओ भाई, और अपनी धरती की डिफेंस करते हुए जो जो जवान और अफसर शहीद हुए हैं उन्हें भी छो, और जौन सा लख बंदा हमने कैद कराया हुआ है उधर पर भी मिट्टी डालो। ये बतलाओ लाहौर की अदबी महफिल का क्या हाल है, हदायत पूछने मजलसा में बैसा होंदियां होंगियां, और साहब सदर नू लोग जनाबे वाला कह के अपनी राय का इजहार करते होंगे। लंबिया बहर की छोटियां गजल और छोटी बहर की लंबिया लंबिया गजल लिखिया जांदियां होंगियां, मेला चरागा में बोलियां पढ़दियां होंगियां, गालड़ बजदे होंगे, आबादियां पर टोल खड़कदे होंगे, जोड़ियां बजदियां होंगियां। हमारी सांझी तहजीब, हमारी सांझी बोली, हमारी सांझी कला जौन सी है, एक कच्चियां बनेरियां पर से गोरे गोरे पैर लटका के काले स्लीपर हिलांदी होएगी वहां पर एमनाबाद में। हाय हमनू लाहौर कितना याद आंदा है, और पिंडी कैसे कैसे दिल खिंच दिए, मुल्तान के नाम पर कैसी कैसी हुक उठ दी है। भारतीय अदीब कहते हैं ये सांझी तहजीब, आपस की मोहब्बत और सूत्र मंडी की याद ही है जिन्हें हमने मशरकी पाकिस्तान पर हमला करने से मजबूर कराया, जिन्हें सूत्र मंडी के लाला श्री राम के बेटे स्क्वाड्रन लीडर घनश्याम नू टाके एयरपोर्ट पर बमबारी करने पर मजबूर कराया, जिन्हें पिंडी डीएवी स्कूल के पढ़े हुए कर्नल कुमार नू हिली पर 23 टैंका से हमला करने पर मजबूर कराया। आओ असी एक बोली, एक सांझ और एक तहजीब और सांझियां पुरानियां यादां के जोर पर मशरकी पाकिस्तान की तरह मगरबी पाकिस्तान पर भी हमला करिए, लाहौर पर भी टैंक चढ़ाइए, कराची पर मिसाइलों से हमला करिए, सरहद और बलोचिस्तान पर मग्गा से बमबारी करिए, और फिर सूत्र मंडी में बैठ के छोटी बहर की लम्बियां गजलां लिखिए, और इंसानियत नू सुलह ते मोहब्बत ते भाईचारे ते जिंदगी बसर करने की तालीम दइए। अदीब बन के अदीब के फर्ज पछानिए, और अपने ख्यालात ते बचे खुचे लोगों की आहा नू हास्या में बदलिए। तायाजान, हाँ जी वो मैं इसलिए हाजिर हुआ था जी कि मेरी जमीन और जायदाद पर जो आपने कब्जा कर रखा है ना जी, उसके बारे में कुछ अर्ज करूं। फिर वही गल मूर्खा वाली, और बरहान शाह तेरी मेरी बोली एक, तेरी मेरी तहजीब एक, और तेरा मेरा खून एक, तेरी मेरी नस्ल एक, फिर तक कहते छोटे और नीच और कमीने और मादी ख्यालात में उलझे हुए। खुश रहे, आबाद रहे, नज्म नहीं लिख सकता तो नसर लिखा कर, और कदे कदे आ जाया कर मेरे पास, तेन देख के पुरानियां यादां आ जांदियां, कालजे में ठंड पड़ जाती, मरहूम भाई की शक्ल है जो उनसी अखा मूरे आ जाती, और वो वक्त याद आता जब मैं और मरहूम भाई साहब घंटों घंटी टूटी मंजी पर बैठकर बातें क्या करते थे। तय कमीनियां मादा परस्ती की तरफ पड़ गया, जमीन इलाकियां और रकमे की बातें करने लग पड़े, और रूहानियत छड़ गया बदबख्ता, और कला छड़ गया, अदब और शायरी छड़ गया, तो कैसा लड़का हो गया, सांझी तहजीब और कल्चर पे मुंह मोड़ गया बदबख्ता।